हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडीज़ में। तो देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे तहसील वेलफेयर का जो एग्ज़ाम जो कि मॉर्निंग सेशन में हुआ है आज ही के दिन 1 नवंबर 2020 को। तो हमने इससे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर जो थे वो 90 तक डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को चेक नहीं किया है तो आप जो है वो चैनल पर चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दिया गया है। इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चंस रह गए थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट पीएम स्वयं निधि स्कीम। तो देखिए, इसकी ऑप्शंस थी, द स्कीम वाज अनाउंस्ड एज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक स्टिमुलस टू अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान. It has been implemented since 1st June 2020 for providing affordable working capital loan to street vendors to resume their livelihoods that have been adversely affected due to COVID-19 lockdown. It was launched by the Ministry of Finance. तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन थी, ऑप्शन बी इज़ द राइट वन, दैट इज़ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड 3 इज़ द करेक्ट. Next one is question number 2. Which of the following statement are correct about अटल टनल. तो देखिए, अटल टनल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इस टॉपिक को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने अभी तक उस वीडियो को चेक नहीं किया है तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटल टनल के बारे में जो वीडियो है उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं. तो देखिए, यहाँ पूछा गया था अटल टनल के बारे में. इट रिड्यूसेस द रोड डिस्टेंस बाय 56 किलोमीटर बिटवीन मनाली एंड लेह एंड द टाइम बाय अबाउट 5 to 6 hours. It is first step towards providing all-air connectivity to Ladakh. It will also provide a strategic benefit to the country's armed forces. तो देखिए, इसके बारे में जो स्टेटमेंट सेकंड है और स्टेटमेंट थर्ड है वो तो राइट है, लेकिन जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे 56 दिया है जबकि जो डिस्टेंस है वो 46 किलोमीटर है. तो ये यहाँ पे था. तो इसके जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द राइट वन, दैट इज़ स्टेटमेंट 1 and 3. Next question is question number 3. According to National Education Policy 2020, teacher will be able to teach lessons in mother tongue or regional language up to grade. Then option A is the right one, that is grade 5. Next question is, which of the following statement are correct about XOO infection. Then statements are, it causes a serious bacterial leaf blight disease in rice. It is also known as bacterial blight. It is a gram-negative bacteria. It is caused by a bacterium called XOO, that is Xanthomonas oryza EPV oryzae. Then the option D is the correct one, that is which include the statement first, second, third and fourth. Next question is question number 5. Which of the following statement are correct about e-way bill system. Then the statements are, first one is, it is an electronic way bill for movement of goods to be generated on the e-way bill portal. A GST registered person cannot transport goods more than 50,000 without an e-way bill. Then the correct option is option D is the right one, which include the statement first, second and third. Next question is question number 6. Which of the following statement are correct about Rashtriya Kamdhenu Ayog. Then the statements are, it aims to promote animal husbandry on modern and scientific means. It aims to preserve and improve breeds of cattle. It has been constituted under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare of Union Ministry.
Then the option D is the correct one, that which include the statement first, second and third. Next question is question number 7. Which of the following statement are correct about भारत नेट प्रोजेक्ट? तो देखिए इसके स्टेटमेंट्स थी, ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया विल कनेक्ट 5000 विलेज panchayats with satellite broadband under this project by March 2021. Panchayats are to be selected from the border and Nexal affected states as well as in Iceland territories. Then it does not include those located in northeastern states and the Galwan Valley in eastern Ladakh as well as in Andaman and Nicobar and Lakshadweep. तो देखिए इसमें जो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन होगी, देन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन विच इंक्लूड द स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वन बंधु कल्याण योजना? तो देखिए इसकी ऑप्शन जो करेक्ट थी, ऑप्शन बी इज़ द राइट वन, दैट इज़ वेलफेयर ऑफ ट्राइबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. The theme of World Habitat Day 2020 is, option D is the right one, that is housing for all, a better urban future. Next question is, recent notification issued by the Ministry of Law and Justice India, which country was declared as the reciprocating territory? Then the correct option is option B, Oman. Next one is question number 11. Question number 11 is, which country assumed presidency of the UN body Convention on Migratory Species for the next 3 years? Then the correct one is option B, India. Next question is, which of the following statements correct about India European Union flagship call? Statements are, it is associated with energy field. It was announced at the India Smart Utility Week 2020 jointly by the Secretary Department of Science and Technology and European Union ambassadors to India. Then option C is the right one, which includes the statement first and second. फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI? देन द स्टेटमेंट्स आर, द यूनाइटेड किंगडम हैज़ बीन रिसेंटली confirmed as the first co-chair of the Governing Council on CDRI. The Governing Council is the highest policy-making body of the CDRI, which is led by India. Then option C is the right one, which includes statement first and second. Next question is, which decade is named as the Decade of Health Easing as per the World Health Organization WHO? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी इज़ द राइट वन, दैट इज़ 2020 to 2030. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. द कोर्ट ऑफ विच कंट्री ऑर्डर्ड द गवर्नमेंट टू इम्पोज अ बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक? ऑप्शन सी इज़ द राइट वन, दैट इज़ बांग्लादेश. Next question is question number 16. The Nobel Prize for Philosophy or Medicine 2020 has been awarded to 3 scientists for the discovery of which virus? Then the correct option is, that is hepatitis C. Next question is question number 17. Two equal and opposite forces cancel each other. However, action and reaction which are equal and opposite to each other do not cancel each other, because option B is the right one, that is they act on different bodies. Next question, question number 18.
The scattering of a beam of light by the dispersed phase particles in a colloidal solution as it passes through it is known as. Option B is the right one, that is Tyndall effect. Next question. Salt into the vegetables during cooking process, vegetable release water. What mechanism is responsible for it? Option B is the right one, that is exoosmosis. Next question, question number 20. Exchange of genetic material takes place in. तो जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है. देन ऑप्शन बी इज द राइट वन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट वाज सिविल disobedience movement? Then option B is the right one, that is active refusal to obey certain laws, demands and commands of a government. Next question 22. Which of the following statements are correct about Ram Krishna mission? Options are statements हैं. The mission is named after and inspired by the Indian Sant Ramakrishna Paramahansa. It was founded by Swami Vivekananda in 1897 AD. It propagates four yogic ideals: Jnana Bhakti, Karma and Raj Yoga. Then the correct answer is right one, which include the statement first and second. Next question, question number 23. Which of the following statements are correct? First one is the East India Company for the first time acknowledged the state responsibility for promotion of education in India. The second one is the Charter Act of 1813 allowed the Christian missionaries to spread their religions ideals in India. Then option C is the right one, which include the statement first and second. Next one is consider the following incidences and arrange them in correct chronological order. तो देखिए यहाँ पे जो दिए गए थे वो दिया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड, मुस्लिम लीग का फाउंडेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और खिलाफत आंदोलन. तो देखिए हमें इसको अरेंज करना था. तो पहले जो आएगा वो सेकेंड वन वाला, दैट इज़ मुस्लिम लीग, क्योंकि ये 1906 में हुआ था. और फिर ये जो पहले वाला है ये 1919 में हुआ था. सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में हुआ था. अब रहता है खिलाफत आंदोलन, तो ये भी 1919 में ही हुआ था. तो हम इसको जो है वो करेक्ट ऑप्शन डी को लेकर चलते हैं. बाकी जो भी आंसर की के अकॉर्डिंग आएगा, एक बार आंसर की को भी चेक कर लें, और जब भी आंसर की के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर आएगा हम आपको बता देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. In which of the following session of the Congress new constitution was adopted and a working committee was formed? Then option B is the right one, that is Nagpur session 1920. Next question, which of the following is incorrect about Indian Independence Act? Then the option A is the right one, that is ब्रिटिश सम्राट ने कुछ समय के लिए बिल पर विटो का अपना अधिकार बनाए रखा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? स्टेटमेंट्स है वॉरेन हेस्टिंग्स was the first Governor General of India. The second is Lord Canning was the first Viceroy of India. Correct answer is option is the right one, that is 1 and 2. Next one is question number 28. 1902 में फ्रेजर कमीशन की नियुक्ति किस लिए की गई थी? Then option B is the right one, that is पुलिस सुधार. Next question 29.
पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में की गई थी? देन ऑप्शन डी इज द राइट वन, दैट इज लाहौर सेशन 1929. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स is also known as Lord Cross Act? Then the option B is the right one, that is Indian Council Act of 1892. Next question is 31. Which of the following movement developed a revolution against Hindu religion and culture? Then option D is the right one, that is Aligarh Andolan. Next question 32. From where Raja Ram Mohan Rai borrowed the concept of one god? Option C is the right one, that is Upanishad. Next question is 33. Who founded Dharma Sabha with the object of opposing the Brahma Samaj? Then option C is the right one, that is Radhakant Dev. फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 34. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लीगलाइज्ड मैरिज ऑफ विडोज? ऑप्शन ए इज द राइट वन, दैट इज अधिनियम XV. 15th एक्ट इज. देन 35th क्वेश्चन, पाणिनि के अष्टाध्यायी किस पर आधारित है? ऑप्शंस आर ग्रामर, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी. ऑप्शन ए इज द राइट वन, दैट इज ग्रामर. नेक्स्ट इज द धर्म सूत्रास क्लासिफाई मैरिज इनटू. ऑप्शन बी इज द राइट वन, दैट इज 8 टाइप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द Triratna of Jainism does not consist of. Then option D is the right one, that is right food. Next question 38. बुलंदी बाग के पुरातात्विक अवशेष ब्लैंक से जुड़े हुए हैं. Then option A is the right one, that is पाटलिपुत्र. Next question, स्तूप वास्तुकला में सोपानों का संकेत है. देन ऑप्शन बी इज द राइट वन, दैट इज स्टेयर्स, सीढ़ियाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगढ़ में दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से संबंधित हैं. ऑप्शन सी इज द राइट वन, दैट इज गुप्त काल. तो देखिए ये जो थे ये फर्स्ट टू 40 क्वेश्चंस थे, ये सीरीज़ डी के क्वेश्चन थे. आप अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन चेक कर सकते हैं. तो बाकी हमने जो इससे पहले वाला वीडियो का पार्ट है उसमें 41 से लेकर 90 क्वेश्चन तक क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं. जो बाकी के 10 क्वेश्चन रहते हैं वो हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं. अगर आपने अभी तक उस वीडियो को चेक नहीं किया है तो आप चैनल पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 91. क्वेश्चन नंबर 91, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट KFW बैंक जर्मनी की सहायता से HP राज्य के निम्नलिखित में से किन जिलों में लागू किया जा रहा है? देन ऑप्शन सी इज द राइट वन, दैट इज चंबा एंड कांगड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन 92. ग्राम पंचायत घर के निर्माण, मरम्मत और उन्नयन के लिए रुपए 2,50,00,000 को निम्नलिखित में से किस योजना के तहत 50 ग्राम पंचायतों के लिए जारी किए गए हैं? देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान. नेक्स्ट क्वेश्चन 93 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100.
तो देखिए कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन कौन सी है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि उसका काम क्या क्या है। तो देखिए जो फर्स्ट वन है वो भी उसका काम है, जितने भी आपकी कोई शिकायतें हैं उसको वो रजिस्टर करते हैं। सेकंड वन है कैप्चरिंग द सजेशंस एंड डिमांड्स फ्रॉम सिटीजन्स, ये भी उसका काम है। थर्ड वन इज़ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम्स, ये भी जो 1100 हेल्पलाइन है उसका काम है। तो इसमें से रह कौन जाता है, ऑप्शन डी। देन जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द राइट वन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट बेटी है अनमोल योजना ऑफ HP। तो बेटी है अनमोल योजना के बारे में भी आपने सुना होगा कि जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो उससे रिलेटेड है ये। देन स्टेटमेंट्स है योजना इज फॉर दोज गर्ल्स कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी। सेकेंड वन इज़ two girl children of a single family can take scheme benefits scholarship. Third one is scholarship of rupees 15,000 to pursue higher education is given. Then the option D is the right one, which includes the statement first, second and third. Next question 95, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिमाचल प्रदेश की सौर सिंचाई योजना के बारे में सही है। तो देखिए इसमें स्टेटमेंट्स है, इसका प्राथमिक उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना, किसानों को सिंचाई करने के लिए सोलर पंप सेट खरीदने पर 75% से 100% सब्सिडी मिलेगी, 5,850 कृषि पंप सेट किसानों को प्रदान किए जाएंगे। Then option D is the right one, which includes the statement first, second and third. Next one 96, which of the following statements are correct about मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना of HP। स्टेटमेंट्स है it will ensure livelihood security to urban households by providing a guarantee employment of 120 days in a financial year. Employment will be provided to eligible beneficiaries within 15 days of registration. The upper age limit for providing work shall be 62 years. Then the correct answer is right one, that is which include the statement first and second. Next question, which of the following statements are correct about Atal School Vardi Yojana of HP। तो ये जो है ये स्कूल कैंडिडेट्स, गवर्नमेंट स्कूल कैंडिडेट्स की ड्रेस के रिगार्डिंग जो योजना है उसका नाम है अटल स्कूल वर्दी योजना। तो इसके स्टेटमेंट्स हैं ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1st to 12th ऑफ स्टेट रन स्कूल्स गेट स्कूल यूनिफॉर्म फ्री इन अ ईयर। तो ये भी इसके करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड वन है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1st to 12 also get school bags in addition to 2 uniforms in a year। तो ये गलत है। और नेक्स्ट वन है the aim of the scheme is to bring about uniformity among students in the classroom by providing similar uniforms to all irrespective of their economic status। तो ये भी करेक्ट है। देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें ये पार्ट तो करेक्ट है कि 2 यूनिफॉर्म्स इन अ ईयर, लेकिन जो ये है कि 1st to 2nd ये वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि इस 1st to 12th क्लासेस के लिए बैग्स नहीं मिलता है, बीच में से कोई सिलेक्टेड क्लासेस हैं उनको ही बैग्स मिलता है। देन ऑप्शन सी इज़ द राइट वन विच इंक्लूड्स द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, which of the following statement are correct about Himachal Health Care Scheme। Then the correct option is option A, which include the statement first and second। और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है कि राज्य सरकार एक परिवार में अधिकतम 5 सदस्यों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस उपचार प्रदान करती है। और सेकंड वन है सभी पंजीकृत परिवार के सदस्यों को सभी अनुभव वाले अस्पतालों में पूर्व निर्धारित पैकेज दरों पर उपचार मिलेगा।
Then next question is 99. Which of the following statement are correct about smart city mission? तो देखिए यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में पूछा गया है और इसकी स्टेटमेंट्स दी गई हैं. देन द करेक्ट वन इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 100th. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एक बूटा बेटी के नाम स्कीम? Then the statements are: the scheme has been launched to sensitize people about the importance of daughter and forest sampling, along with a kit will be provided to the parents on the birth of a girl child. पंचायती राज डिपार्टमेंट विल मेंटेन द इट्स रिकॉर्ड. तो देखिए ये जो एक बूटा बेटी के नाम स्कीम है, ये ऑन द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड दिया जाता है. ये दिया जाता है ताकि जो फैमिली है वो इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स भी जाने और जो फॉरेस्ट की है उसके बारे में भी जाने. तो पंचायती राज डिपार्टमेंट ही इसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है और एट द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड ही दिया जाता है. देन ऑप्शन डी इज़ द राइट वन विच इंक्लूड द स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. तो फ्रेंड्स ये जो था ये आज का हमारा सेशन था रिगार्डिंग तहसील वेलफेयर एग्ज़ाम के, जो कि वीडियो का ये सेकंड पार्ट था. फर्स्ट पार्ट जो है वो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं. अगर आपने अभी तक उस वीडियो को चेक नहीं किया है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें.